Okay, so let's discuss about what is meant by unsupervised learning aids. Okay, so I hope my screen is visible to you, and let me take one example. So for example, in supervised learning, what we do have, we are just going to implement one kind of function, that is y is equal to f of x. So here what we have to do, we have to find the relationship between the y and your x variable. So here y is what? Y is your output variable, and here x is what? X is set of input variables. It is set of input variables. Okay, so this is what the equation that we are going to establish. So we can clearly see that if the problem is regression, this equation is going to be y is equal to mx plus c. If the problem is like your support vector machine, so this equation becomes the equation of plane or hyperplane, I must say. So this function becomes the equation of hyperplane. So yes, ultimately this is how we can define machine learning in like mathematical definition, we can say. So that is y is equal to f of x. So ultimately in supervised learning we are having y as dependent variable. We are having y as dependent variable, and that is why it is called as supervised learning. So if we are not having y variable with us, then we must go for unsupervised learning. Then we must go for unsupervised learning. So it is very difficult to understand how your algorithm is going to work without dependent variable. Let me tell you that this y is also called as a label. This y is also called as a label. Label means it is like zero, it is, or zero or one, that means it is the class label, or it might be the regress y value. Okay, so this is either zero class or one class. Okay, so that is what your y is going to be. So this is what label data is. So for example, if your data is like this, so here we are having a number of x column like x0, x1, x2, x3. So these many columns we are having as a independent columns, and here there is one column, that is y. So this y depends on these many columns x0, x1, x2, x3. So this y is called as dependent variable. So there are some data sets where we are not going to have such kind of y variable. And that is why such kind of data sets are called as unlabeled data. Unlabeled data. Such kind of data sets are called as unlabeled data. Now, how to deal with this unlabeled data? So for example, whatever the example we seen in classification problem, that is having like age and estimated salary as your column names, like x columns, and in y column you are having, a purchased column. So whether you are going to purchase that particular product or not. So obviously this purchase decision depends on your salary and your age. So that is what the data set into classification. That is what the data set in classification. But if such column is not available, only this age and estimated salary is available, so in that case what you are going to do? So ultimately it is like unsupervised. We don't know exactly on which basis we are just going to, what things we are going to find out from this data set. So this problem becomes like a very unsupervised problem. So obviously अगर आपको कुछ भी एल्गोरिदम लर्न करना है तो y के बेसिस पे लर्न होता है. So जो भी हमने एल्गोरिदम डिसीजन ट्री में आपको पता होगा, KNN में आपको पता होगा कि ये सब कुछ जो लर्निंग होता है ये y के बेसिस पे लर्न होता है. And we just try to establish equation like y is equal to f of x in any algorithm. But in unsupervised learning, we don't have this y column. So if we don't have y column, so what kind of problems we can just solve using this technique? So basically, let me tell you that even this is not the problem of regression. This is not the problem of regression. And even this is not the problem of classification.
दिस इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन. सो जो भी प्रॉब्लम होता है ना अनसुपरवाइज लर्निंग में, उसको बोलते हैं हम क्लस्टरिंग. इसको बोलते हैं क्लस्टरिंग. दैट इज कॉल्ड एज अ क्लस्टरिंग. ओके. So let me tell you what is clustering is. So what is clustering is? So clustering में पहली बात तो clustering एंड क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंस होता है वो भी बताता हूँ मैं. लेकिन क्लस्टरिंग में एग्जैक्टली योर वाई लेबल इज नॉट रिक्वायर्ड. सो क्लस्टरिंग होता कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि कुछ आपके पास एज है एंड देन आफ्टर दैट आपके पास एस्टिमेटेड सैलरी, ये डेटा है, सेम डेटा है दैट वी आर हैविंग इनटू योर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. अभी लेट्स कंसीडर दिस इज योर डेटा ऑफ द कंपनी. लेट्स कंसीडर दिस इज योर डेटा ऑफ कंपनी. ये एक कंपनी में ये लोग ब्लू कॉलर जॉब है, लेट्स कंसीडर. तो ये लोग इतने लोग काम कर रहे हैं, सबको एज एंड एस्टिमेटेड सैलरी अराउंड पता होता है. ठीक है. तो सिर्फ इतना ही पता है. तो उसमें क्या होता है कि पीपल में ट्राई टू मेक देयर फ्रेंड्स. तो जो भी लोग होते हैं वो फ्रेंड्स बनते हैं एक दूसरे के. सो इन दैट केस उनके फ्रेंड्स के ग्रुप बनते. तो ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है. सो ऐसे उनके ग्रुप्स, जैसे हमें कॉलेज में फ्रेंड्स का ग्रुप बनता है वैसे इनका ग्रुप बनेगा. लेकिन ये जो ग्रुपिंग होगा उसके पीछे कुछ लॉजिक होगा. किस बेसिस पे होगा? अगर कंपनी में अगर आपने कभी काम किया तो आपको पता होगा कि ये पहले एज बेसिस पे भी होता है. एंड कौन से लेवल पे, अगर मैनेजरियल लेवल पे एक बंदा है वो मतलब जो भी क्लीनर वगैरह होते हैं उनके साथ कभी दोस्ती नहीं करते हो. सो ऑब्वियसली एस्टिमेटेड सैलरी अल्टीमेटली गोइंग टू प्ले अ रोल ओवर दैट. तो अगर ये ग्रुपिंग बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज, एंड एक एक एज वाले लोग जनरली एक साथ होते हैं, अराउंड सैलरी जो एक साथ होते हैं, फॉर एग्जांपल मैनेजरियल लेवल के लोग वो लेवल के लोगों के साथ ही दोस्ती करते हैं. सो अल्टीमेटली दिस पैरामीटर्स कम्स इनटू पिक्चर ओवर देयर. सो यहाँ पे जब ये ग्रुपिंग जो बनता है इसको बोलते हैं क्लस्टर्स. इनको बोलते हैं क्लस्टर्स. तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं इन दिस ग्रुप. सो ये जो लंच है ये साथ में करते हैं ये लोग. लाइकवाइज यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनका अलग से ग्रुप है. हाँ, यहाँ पे जो जेंडर है दैट इज आल्सो मैटर्स. हाँ, सो फीमेल फीमेल का ग्रुप होता है. लाइकवाइज यहाँ पे भी कोई कुछ लोगों का ग्रुप है, छोटा ग्रुप है फॉर एग्जाम्पल. So there is no hard and core y variable here to decide their group. तो यहाँ पे कोई भी ऐसा y वेरिएबल नहीं उनका ग्रुप डिसाइड करना. ये किसके बेसिस पे हुआ? सिर्फ x लेबल्स के बेसिस पे हुआ. ये एस्टिमेटेड सैलरी एंड एज है ना, दैट इज योर x लेबल, सॉरी x वेरिएबल. तो इनके बेसिस पे इनके ग्रुप्स हो गए. एंड ये जो ग्रुपिंग्स है इसको बोलते हैं क्लस्टर. इनको बोलते हैं क्लस्टर. नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज दैट इज इट क्लासिफिकेशन? इज इट मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर नया रिक्रूटमेंट आता है, फॉर एग्जाम्पल आपका कंपनी में रिक्रूटमेंट होता है, योर एज इज 30 एंड योर सैलरी यू गॉट इनटू दैट कंपनी फॉर एग्जाम्पल 1,20,000. ये आपका सैलरी है. तो हमें प्रेडिक्ट करना है कि आप किन लोगों के साथ जाओगे, विच विथ विच क्लस्टर यू विल बी देयर. सो इस केस में आपको प्रेडिक्ट करना है कि आप किस क्लस्टर के साथ जाने वाले हो. तो ऑब्वियसली ये किसके ऊपर डिपेंड है? ऑब्वियसली आप क्या करोगे, जो भी आपके एज के रेंज में लोग होते हैं उनके तरफ आप अट्रैक्ट हो जाओगे. एंड जो भी आपके लेवल के, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोग्रामर हो तो आप प्रोग्रामर के साथ दोस्ती करोगे. अगर आप प्योन है तो आप प्योन के साथ दोस्ती करोगे. इफ यू आर अ मैनेजर यू विल जस्ट बी फ्रेंड विद मैनेजर. तो ऑब्वियसली इस चीजों के ऊपर आपका क्लस्टरिंग हो जाता है. यू जस्ट डिवाइडेड इनटू क्लस्टर्स. ओके. सो यहाँ पे डिसाइड किया जाए कि यू आर गोइंग टू बी देयर इनटू दिस पर्टिकुलर क्लस्टर. सो ये डिपेंड होता है सिर्फ एक्स वेरिएबल के ऊपर. देयर इज नो सच काइंड ऑफ वाई वेरिएबल. अभी और कुछ दो चार लोग एक साथ अगर ज्वाइन होते, फॉर एग्जांपल 3 लोग हैं नए एक साथ ज्वाइन हो गए नए, इट हैपेंस इन द इंडस्ट्री. अगर 3 लोग एक साथ ज्वाइन होते हैं तो जनरली वो अपना ही खुद का एक क्लस्टर बना लेते हैं, मतलब ग्रुप बना लेते हैं ये 3 लोग. सो इट माइट हैपन. सो देयर इज नो लिमिट. देर इज नो लिमिट, कितने भी ग्रुप हो सकते हैं. एंड देर इज नो हार्ड एंड कोर दैट रूल कि ये कौन से लोग किसके साथ जाएंगे. सो दैट डिपेंड्स ऑन जनरल, इन जनरल दिस पैरामीटर्स. देर इज नो नंबर ऑफ क्लासेस ओवर हियर. सो ये क्लासेस नहीं है, दीज आर नॉट क्लासेस. क्लासेस क्या होता है? फिक्स होता है 0 and 1.
तो ये सिर्फ 0 और 1 में डिवाइड हो जाएंगे सारे एम्प्लॉइज। लेकिन अभी देखो यहाँ पे ये अपने अपने हिसाब से अपने अपने ग्रुप्स में जा रहे हैं, and there is no limit 0 1 2 3 4, there is no limit for clusters. So generally clustering and classification में difference क्या होता है? Classification में we are having y variable, तो जो y वेरिएबल है उसके हिसाब से ही आपका क्लासिफिकेशन होता है। क्लस्टरिंग में वैसे नहीं होता। क्लस्टर में वी डोंट नीड y वेरिएबल, ऑन द बेसिस ऑफ ओनली x वैल्यूज यू विल बी डिवाइडेड इनटू क्लस्टर्स। तो मैं आपको एक डेटा भी दिखाता हूँ एंड उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि हाउ इट इज बीन डिवाइडेड इनटू क्लस्टर्स। ठीक है, तो क्लस्टरिंग में देर इज नो वाई वेरिएबल, दैट मीन्स जो डेटा होता है वो अनलेबल्ड डेटा होता है। वाई वेरिएबल नहीं है मतलब अनलेबल्ड डेटा होता है, एंड इन दैट केस वी गो फॉर क्लस्टरिंग। ठीक है, तो क्लस्टरिंग एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में ही आपको यूज करना पड़ता है। सो ऐसे नहीं कि आपको कुछ तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है ना, वहां पे आपको डिसाइड करना है कि अभी क्लस्टरिंग करो कि क्लासिफिकेशन करो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो भी आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया होता है वहां पे क्लियरली आपको समझ में आता है कि क्लासिफिकेशन करना है कि क्लस्टरिंग करना है। ठीक है, ये डेटा पे डिपेंड होता है। अगर डेटा में वाई वेरिएबल है ही नहीं तो हाउ वी कैन डू क्लासिफिकेशन देन? सो ऑब्वियसली वी हैव टू गो फॉर क्लस्टरिंग इन दैट केस। क्लस्टरिंग करने का पर्पज ही अलग होता है बेसिकली। क्लस्टरिंग इज लाइक जस्ट ग्रुप ऑफ डेटा पॉइंट्स विथ सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज, दैट इज व्हाट क्लस्टरिंग इज। क्लस्टरिंग मतलब ऐसे ऐसे ग्रुप होता है विथ सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज, मतलब एक एज ग्रुप वाले लोग हैं, सिमिलर सैलरी वाले लोग हैं, इनको क्लस्टर्स बोलते हैं। क्लासिफिकेशन तो वैसे नहीं होता, क्लासिफिकेशन सिर्फ आपके वाई वेरिएबल के ऊपर डिपेंड होता है, दैट इज व्हाट इट इज। ओके, so let me show you one data set, and that is specifically for uh, clustering purpose. Okay, let me show you that. Okay, so this is the data set. Now in this data set you can just see these are the columns. These are column names like customer id, gender, this is actually gender, huh? Okay, gender. Then age, annual income, spending score. So these are just the columns. Now this data is from one mall. So आप यहाँ पे देख सकते हैं mall customers, मॉल कस्टमर्स डॉट सी एस सी। सो एक मॉल का डेटा है, एंड अभी मॉल में प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि ये जो डेटा है ना ये सारे मॉल के कस्टमर्स का डेटा, ये आप देख सकते हैं इतने सारे कस्टमर्स है मॉल में। सो अराउंड आई थिंक 200 कस्टमर्स आर देयर। तो ये जो कस्टमर्स है इसमें हमें क्या करना है कि एक मॉल में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, नया वाला लॉन्च, हम मॉल के लिए काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, एंड मॉल में नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है ना, उसके लिए हमें मार्केटिंग करना है। अभी मार्केटिंग करने के लिए हमें वी हैव टू जस्ट लुक लुक फॉर सम काइंड ऑफ कस्टमर्स। ऐसे नहीं कि हमने सब लोगों को कॉल किया, सब लोगों को मैसेज भेजा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये डी मार्ट या तो एन मार्ट या तो जो भी बड़े बड़े ब्रांड बड़े बड़े मॉल्स है, सो वहां पे अगर ये डेटा आप देखोगे तो दैट विल बी इन मिलियंस। सो हर एक को ऐसे करना नॉट पॉसिबल। सो वी हैव टू जस्ट सिलेक्ट सम काइंड ऑफ पीपल, सिर्फ उनको ही हम मार्केटिंग करेंगे। अगर अगर
आपको आपका फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्ट है कॉस्मेटिक वाला प्रोडक्ट है, अगर आपका प्रोडक्ट है ये बहुत महंगा प्रोडक्ट है, तो उस केस में सम कैटेगरी ऑफ पीपल, not class, I am talking about, it is about category or it is about cluster. So एक एक कैटेगरी ऑफ पीपल को हमें सिर्फ टारगेट करना है, तो वो जो कैटेगरी ऑफ पीपल है ना, दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट फ्रॉम दिस। तो इस डेटा में आपको क्लियरली दिखाई देगा कि यस, इस इन लोगों को मुझे टारगेट करना है, इन लोगों को मुझे टारगेट करना है। तो ये मैं आपको बाय विजुअलाइजेशन पहले दिखाता हूँ, उसके बाद में विल डू कोड फॉर इट, उसके बाद में इसको कोड करते हैं। तो पहले तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि जो भी ये डेटा है इसमें वी कैन सी दैट वी आर हैविंग 5 कॉलम्स। अभी इसमें कोई भी वाई कॉलम नहीं, सारे एक्स कॉलम्स है। इसमें कोई भी वाई, देखो यहाँ पे कोई भी कॉलम नहीं है, क्लास वाला वगैरह ऐसा कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कॉलम नहीं है। तो यहाँ पे सारे कॉलम्स एक्स कॉलम्स है। Now using this data we are just going to we are just going to find the clusters of the कस्टमर्स के क्लस्टर्स मतलब कैसे होते कि लाइक महंगे प्रोडक्ट लेने वाले कस्टमर्स, या तो ऐसे कस्टमर्स होते हैं कि ये महंगे प्रोडक्ट नहीं लेते, सिर्फ कम प्राइस वाले प्रोडक्ट लेते हैं। कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि उनकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है फिर भी वो ज्यादा खर्चा नहीं करते। कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि उनका सैलरी बहुत कम होता है फिर भी वो बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं। सो यस, ये डिफरेंट काइंड ऑफ कस्टमर्स है। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये कस्टमर्स डिवाइड होने वाले। नाउ व्हाई दिस इज सो, बिकॉज ये जो डेटा इसमें से सिर्फ मैं 2 कॉलम्स यूज करूंगा। आई एम जस्ट गोइंग टू यूज ओनली 2 कॉलम्स फ्रॉम दिस डेटा। वन इज एनुअल इनकम एंड अनदर इज स्पेंडिंग कोर। आप बोलोगे सर एज क्यों नहीं, जेंडर क्यों नहीं? द रीजन इज सेम, दैट आई जस्ट वांटेड यू टू लुक इन टू विजुअलाइजेशन ऑफ दिस डेटा। तो इस डेटा को मुझे विजुअलाइज करना है, तो ऑब्वियसली वी कैन टेक मैक्सिमम 2 कॉलम्स ओनली। ठीक है, सो ये 2D पे मुझे प्लॉट करना है, इसलिए मैक्सिमम 2 कॉलम्स मुझे लेना है। ऑब्वियसली जो हम के मीन सीखने वाले हैं, तो के मीन सीखने के लिए वी आर जस्ट गोइंग टू कंसीडर ओनली 2 कॉलम्स, क्योंकि वो एल्गोरिथम समझने के लिए 2 कॉलम्स इनफ है। तो यस, द सेम रीजन कि मैं 2 कॉलम्स यूज करूंगा, इसको विजुअलाइज करके वी आर जस्ट गोइंग टू फाइंड आउट देयर क्लस्टर्स, वी आर जस्ट गोइंग टू फाइंड आउट देयर क्लस्टर्स और कैटेगरीज वी कैन से। तो यहाँ पे कस्टमर आईडी ऑब्वियसली इट इज यूजलेस कॉलम, बट जेंडर एंड एज इज यूजफुल, जेंडर एंड एज इज यूजफुल, बट आई एम नॉट गोइंग टू यूज देम, आई एम जस्ट गोइंग टू यूज दिस 2 कॉलम्स। अभी इसमें एनुअल इनकम मतलब ये इनकम है, जो भी कस्टमर्स है आपके, इनका इन जनरल इनकम कितना है, सो दैट इज व्हाट इट टेल्स अस। एंड जो भी स्पेंडिंग स्कोर है ये 1 to 100 पे है, तो ये स्पेंडिंग स्कोर बताता है कि आपका कस्टमर जो है, ये स्मॉल का कस्टमर जो है, ये कितना स्पेंड करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप देख सके, दिस इज द पर्सन, ये जो आदमी है उसका स्पेंडिंग स्कोर 81 है। सो 81 आउट ऑफ 100, सो दैट इज क्वाइट गुड स्कोर। इसका मतलब ये है कि ये जो बंदा है ना, ये ज्यादा स्पेंड कर रहा है, सो दैट इज व्हाट स्पेंडिंग स्कोर इज। ठीक है, सो इसका एज भी 21 है, मेल है, एंड इनकम भी इसका कम है वैसे तो, 15,000 डॉलर्स पर ईयर ऑब्वियसली। तो ये इसका स्पेंडिंग बहुत ज्यादा है, लेकिन ये बंदा देखो, आई थिंक शी इज लेडी अभी। ओके, सो दैट इज सरप्राइजिंगली लेडी है तभी उसका स्पेंडिंग बहुत ही कम है। सो यस, ओके, नो इश्यूज। सो इसका स्पेंडिंग स्कोर सिर्फ 6 है। तो इसका स्पेंडिंग स्कोर सिर्फ 6 है, इसका मतलब ये बहुत कम स्पेंड कर रहे हैं। वैसे तो इसका सैलरी $16,000 पर ईयर है, तो देखो ये जो बंदा इससे ज्यादा इसका सैलरी है, इनकम है, स्टिल ये बहुत कम स्पेंड कर रहे हैं। सो यस, दीज आर सम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल, दीज आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल। तो लेट मी जस्ट शो दिस डेटा ऑन टू जुपिटर, एंड उसके बाद में हम देखेंगे कि इसके क्लस्टर्स कौन से बन सकते हैं, मतलब कौन से कैटेगरी के पीपल बन सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई वाई वेरिएबल नहीं है। तो कौन से कैटेगरीज बनेंगे ये हमें ही डिसाइड करना पड़ता है। सो लेट मी जस्ट यूज दिस डेटा, let me just use this data in Jupyter. So let me just, okay, so इस डेटा को पहले विजुअलाइज करता हूं मैं। So the name of file is mall customers dot, I think CSV फाइल ही रहेगी।
Let me create a new file. Let me call it as K-means. Okay. So first of all, we need to import pandas as PD, as well as we need to import matplotlib dot pyplot as plt. So these two libraries we need to import first, and then after that we are going to import the data set, that is pd dot read csv, and the name of file is mall customers dot csv. And let me show you this data. So df dot head, let me just show you. तो आप देख सकते हैं इतने सारे कॉलम्स हैं, एंड इसमें से सिर्फ दो कॉलम्स मुझे चूज करना है, ये वाले. सो लेट मी जस्ट चूज दिस टू कॉलम्स एज एक्स. यहाँ पे वाई का कोई सवाल ही नहीं. सो डीएफ ऑफ दिस लिस्ट ऑफ कॉलम्स वी आर गोइंग टू सी. एंड ओके, सो लेट मी जस्ट ओके. अगर आपको लगता है कि ये जो कॉलम नेम्स है ना ये थोड़े से डिफिकल्ट है, तो इट्स ओके. आप इस कॉलम नेम्स को यहाँ पे जब रीड सीएसवी करते हैं तब इनको चेंज कर सकते हैं, नो इश्यूज. अगर आपको चेंज करना है तो रीड सीएसवी करते टाइम पे इस कॉलम्स के नाम आप चेंज कर सकते हो, नो इश्यूज. या तो आप ऐसे कर सकते हो, एक्स ऑफ फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू दिस, सेकंड कॉलम ऑफ दिस. मतलब देयर आर मेनी वेज टू चेंज द नेम ऑफ कॉलम्स. ओके, सो वी विल नॉट गो इनटू दैट मच डिटेल. सो लेट मी जस्ट शो यू एक्स डॉट शेप. सो आप देख सकते हैं 200 आपके पास कस्टमर्स है, एंड हर एक कस्टमर के एनुअल इनकम एंड स्पेंडिंग स्कोर, इतना डेटा हमारे पास है. सो लेट मी जस्ट शो यू दिस डेटा on plot plt dot, let me use scatter plot obviously because ये random data है तो उसके लिए scatter plot ही चाहिए. So on x axis I must take annual income of all customers. So इसमें क्या करेंगे, x of yes annual income हम select करेंगे सबका, and on y axis will select spending score. Now let me show you this data. तो आप देख सकते हैं this is what your data is. This is what your data is. Now what is important into this data? Let me use the pen. इस डेटा में आप क्लियरली देख सकते हैं कि we can just find out the groups of people or categories of people. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं on the x axis we are having annual income. On the x axis we are having annual income. On the x axis we are having this is your income is, and on y axis we are having spending score. स्पेंडिंग स्कोर. तो आप देख सकते हैं कि ये 0 to 100 के स्केल पे स्पेंडिंग है, एंड जो इनकम है दैट इज फ्रॉम अराउंड $15,000 टिल $1,40,000 पर ईयर. अभी यहाँ पे वी कैन जस्ट फाइंड दिस कैटेगरी ऑफ पीपल. ये आप देख सकते हैं. सो दिस इज जस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग. मतलब ये जो है ना, ये मैंने कैसे आइडेंटिफाई, एज ए ह्यूमन बीइंग मैंने आइडेंटिफाई. आप यहाँ पे मुझे बताओ कितने ग्रुप्स बन सकते हैं. जैसे अभी मैंने एक ग्रुप बनाया यहाँ पे. सो वैसे आप कितने ग्रुप्स में इस डेटा को डिवाइड कर सकते हैं, टोटल कितने ग्रुप्स होने चाहिए यहाँ पे ऐसे. आपको क्या लगता है कितने ग्रुप्स बनने चाहिए यहाँ पे, और कौन से बनने चाहिए. यू कैन जस्ट पुट योर नंबर इनटू द चैट बॉक्स, कितने ग्रुप्स बनने चाहिए इस डेटा में. ओके, सो यस, एज ए ह्यूमन बीइंग आपको समझ में आना चाहिए कि इसके 5 ग्रुप बनने वाले. सो ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है. अभी ऐसे मतलब इन जनरल एज ए ह्यूमन बीइंग हमें लग रहा है, एज ए ह्यूमन बीइंग हमें लग रहा है. तो इस केस में आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रुप है ना, ये कम इनकम वाला एंड कम स्पेंडिंग वाला है. सो दीज आर नॉर्मल पीपल आई मस्ट से. इनकम कम है इसलिए उनका स्पेंडिंग भी कम है. नाउ यू कैन जस्ट सी दिस पीपल. सो ये जो लोग है ना उनका इनकम भी ज्यादा है, स्पेंडिंग भी ज्यादा है. सो इट्स ओके. सो ये भी नॉर्मल लोग है, ये भी नॉर्मल लोग है.
लेकिन यू कैन जस्ट ऑब्जर्व दिस पीपल. सो इनका देखो इनकम हाई है, so they come under high category but spending is very less. They are having high income but spending is very less. इनको मराठी में काफी वर्ड्स है टू डिस्क्राइब सच काइंड ऑफ पीपल. बहुत ज्यादा कमाते हैं लेकिन खर्चा बहुत कम करते हैं. सो इट्स ओके. दिस काइंड ऑफ पीपल यू कैन जस्ट आल्सो ऑब्जर्व इन द सोसाइटी. इनकम कम है लेकिन स्पेंडिंग बहुत ज्यादा. ठीक है. सो जनरली यस, ये होता है. हम सोसाइटी में देखते हैं बहुत सारे लोग कि उनका स्पेंडिंग भी बहुत कम है लेकिन सॉरी उनका इनकम कम है लेकिन स्पेंडिंग बहुत ज्यादा है. सो दिस इज व्हाट दैट कैटेगरी इज. तो अभी जो आप मॉल में एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, सो दैट प्रोडक्ट इज like for example any product, for example product P1 you are launching. तो इस केस में कौन से कैटेगरी के लोगों को आप टारगेट करोगे? दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन इज. अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट P1 आपको लॉन्च करना है तो किन को आप टारगेट करोगे? सो इन जनरल ऐसे आपको बोलना आपने बोलना चाहिए कि पहली बात तो ये लोगों को टारगेट करने का मतलब ही नहीं है क्योंकि इनका स्पेंडिंग ऑलरेडी कम है, इनकम भी कम है. ये लोगों को टारगेट मतलब आपको मार्केटिंग करना है बेसिकली. अगर अगर ये आप कंपनी में कर रहे हैं, कंपनी के लिए सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम, तो बेसिकली आपको क्या करना है? आपको एक मार्केटिंग टीम असाइन करनी है दैट विल वर्क ऑन दैट कैटेगरी ऑफ पीपल. तो यस, एक मार्केटिंग टीम इस पे कभी काम करना नहीं चाहेंगे बिकॉज इनको कितना भी कन्विंस करो दे आर नॉट गोइंग टू स्पेंड. सो इन पे मतलब मार्केटिंग करना भी मतलब कोई फायदा ही नहीं उनका. सो ये दो कैटेगरीज पे. Now, obviously, marketing के लिए will choose this kind of people as well as this kind of people. ये middle class लोग हैं, like उनका जो इनकम भी मिडल में आता है एंड स्पेंडिंग भी मिडल में आता है. तो इनको भी आपको हाँ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग लगेगा आपको. सो ये थोड़ा सा सोच समझ के खर्चा करते हैं ऐसे लोग हैं फॉर एग्जाम्पल. तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग टीम लगेगी. इनको सिर्फ मैसेजेस भेजे तभी भी चलेगा. ये मतलब हाई स्पेंडिंग वाले लोग हैं, हाई इनकम वाले लोग हैं तो उतना ज्यादा सोचेंगे नहीं. ये जो लोग हैं, ये जो लोग हैं, इनको सिर्फ ऐसा मैसेज भेजो कि इसके ऊपर ये फ्री है. सो जस्ट गिव सम काइंड ऑफ उनको ये दे दो, ऑफर दे दो थोड़ा सा. तो ऑब्वियसली ये आएंगे एंड ये खर्चा करने वाले. सो ये खर्चा करने के लिए थोड़ा भी आगे पीछे नहीं देखते. तो ऑब्वियसली इनका इनकम कम है लेकिन थोड़ा सा ऑफर दे दो इनको. बाकी उनके उनके ऊपर भी ज्यादा आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं. इनको ऑफर दे दो, इनको सिर्फ मैसेज भेज दो. इन लोगों के ऊपर आपको स्ट्रॉन्ग जो मार्केटिंग टीम है उनको आपको लगाना पड़ेगा इस कैटेगरी ऑफ पीपल पे. सो अभी ये क्यों समझा आपको? बिकॉज यू हैव जस्ट विजुअलाइज दिस डेटा ऑन द स्क्रीन. So ये now we can just give this kind of insights to the mall कि ऐसे ऐसे लोगों पे ये स्ट्रॉन्ग टीम डालो, इन लोगों को ऑफर दे दो, इन लोगों को सिर्फ मैसेजेस भेजो. सो दैट इज व्हाट यू कैन सजेस्ट टू योर क्लाइंट और योर मॉल. सो ये क्यों पॉसिबल? बिकॉज यू आर एबल टू सी दिस डेटा, यू आर एबल टू विजुअलाइज दिस डेटा. ठीक है. बट ऐसे कंसिडर करो कि बहुत बड़ा डेटा है, कॉम्प्लिकेटेड डेटा है एंड बहुत सारे कॉलम्स है and you are not able to visualize data. You are not able to visualize data. In that case, how what you are going to do? So in that case you are going to take help from AI algorithms. So you are just going to ask AI based algorithm what to do. So AI based algorithms, that means AI system is just going to make clusters of this people like this. तो ये जो क्लस्टर हमने बाय विजुअलाइजेशन एज ए ह्यूमन बीइंग हमने जैसे क्लस्टर बनाए थे वैसे आपके एल्गोरिदम क्लस्टर बनाएगा. ये हमें बताएगा कि कौन से लोग कौन से क्लस्टर में आ रहे हैं. सो यस, ये अगर आपको एआई से या तो कोई भी आर्टिफिशियल सिस्टम है इससे अगर आपको ये क्वेश्चन पूछना है तो हाउ इट इज गोइंग टू डू. So ultimately we have to develop a system, we have to develop a system that will just categorize these people or that will just form group of these people or that will just find clusters of these people on the basis of some specific categories like income and spending. Income and spending. तो इस categories के basis पे, sorry, इस properties के basis पे we are going to just clusterize the people. So whenever we are going to apply AI based algorithm to this data,
ये डेटा, ये जो एआई एल्गोरिदम है, ये आपको यही आंसर देना चाहिए। क्योंकि देखो एज ए ह्यूमन बीइंग हमें ये लग रहा है, मतलब आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी यही बोलना चाहिए। सो ये हम अभी चेक करने वाले हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन clustering algorithm, that is k-means algorithm, that is specifically designed to clusterize the people like this. So what we are going to do, we are going to use the k-means algorithm, and we'll ask k-means algorithm to clusterize this data, and ultimately that k-means algorithm is going to clusterize data लाइक दिस। तो ये ऐसे ही आपका क्लस्टरिंग कर देगा। तो आपको कैसे पता चलेगी ये ऐसे क्लस्टरिंग हुआ? केमिन्स को हम, केमिन्स के बेसिस पे हम क्या करेंगे, इनको कलरिंग करेंगे। केमिन्स बोलेगा ये 0 क्लस्टर है, 1 क्लस्टर है, 2 क्लस्टर है, 3 क्लस्टर है, 4 क्लस्टर है, व्हाटएवर इट इज। तो 0 को अलग कलर से डिस्प्ले करो, 1 को अलग कलर से, 3 को अलग कलर से, 2 से अलग कलर को, 4 को अलग कलर से, क्योंकि केमिन्स इज द एल्गोरिथम। तो आपको सिर्फ ये नंबर्स देगा। ये हम इसको विजुअलाइज करेंगे यूजिंग डिफरेंट कलर्स। तो ये आपको अराउंड लाइक दिस आपको ऐसा आंसर मिलना चाहिए। एंड फॉर दैट पर्पज ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम सॉल्व करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज clustering algorithm, and that clustering algorithm, that is k-means. So k-means clustering algorithm we are going to use to categorize or to divide the people into clusters. Okay, so yes, let's discuss about k-means algorithm is. So देखो यहाँ पे कोई भी y वेरिएबल हमने यूज नहीं किया, just as a human being हमने इनको clustering किया, just divided into some kind of groups. एंड यही काम आपका अभी एल्गोरिदम करेगा। हाउ एल्गोरिदम इज गोइंग टू डिवाइड दिस पॉइंट्स इनटू डिफरेंट क्लस्टर्स, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। ठीक है, सो विदाउट यूजिंग एनी वाई वेरिएबल, कोई भी वाई वेरिएबल नहीं है यहाँ पे। अभी ऐसा कभी कभी हो सकता है कि आपका एल्गोरिदम बोले कि ये कैटेगरी, सॉरी ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये एक अलग से ग्रुप है, ये ग्रुप है। ऐसा भी दिख रहा है, मतलब अगर आप क्लियरली देखोगे तो ऐसे भी ग्रुप बन सकते हैं, it might happen. So that is what we are going to ask to k-means, that is what we are going to ask to k-means. Okay, so yes, this is what your unsupervised learning is, and that is what your problem statement about unsupervised learning is. तो अभी k-means डिस्कस करेंगे। तो k-means में हम क्या करेंगे, विल जस्ट टेक सम डेटा। सो उस डेटा को हम कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। सो टू अंडरस्टैंड k-means, what I am going to do, let's some kind of data, for example. So let me take one data, and that data is just going to be like this. So let me just use, yeah, okay, so let me take some data. Now just by looking at the data, आप मुझे बताओ कि इसके कितने क्लस्टर्स बनने चाहिए। जो भी डेटा मैंने अभी आपको स्क्रीन पे, जो भी डेटा अभी दिख रहा है, ये डेटा एज ए ह्यूमन बीइंग आपको क्या लगता है कि कितने क्लस्टर्स में आपको इसको डिवाइड करना है, कितने क्लस्टर बनेंगे इस डेटा के? दैट इज व्हाट यू आर टू टेल मी। ये जो डेटा है, इसके कितने इन जनरल कितने क्लस्टर्स बनेंगे? इसका कोई फिक्स आंसर नहीं होता, ये डिपेंड होता है आपके, जस्ट लाइक आपके सोच पे ऊपर डिपेंड होता है कि ये कैसे होगा, लाइक। सो क्या लगता है इन जनरल? इन जनरल हमें ये लगता है कि इसके 2 कैटेगरीज या तो 2 क्लस्टर्स बनने चाहिए। वन इज दिस, अनदर इज दिस। अभी कुछ लोग बोलेंगे सर ये एक लग रहा है एंड एक दूसरा लग रहा है, माइट हैपन, ऐसे हो सकता है। सो बट बेसिकली आई मस्ट से दैट ये दो कैटेगरीज इसके बन रहे हैं। सो इन जनरल दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। सो फॉर एग्जांपल 2 कैटेगरीज वी आर जस्ट फॉर्मिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेटा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ये जो डेटा है, नाउ आई एम गोइंग टू पास टू योर k-means। सो k-means को मैं पूछूंगा कि ये जो डेटा है कितने पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल 6 7 7 3 10 एंड 4 14 पॉइंट्स आर देयर। यहाँ पे 14 पॉइंट्स है।
तो के मींस को मैं पूछूंगा कि ये जो 14 पॉइंट्स है उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करो। अभी देखो के मींस को नंबर ऑफ क्लस्टर्स हमें बताना पड़ता है। सो अगर ये के मींस एल्गोरिदम है ना, तो ये के मींस को हमें दो चीजें बतानी पड़ती है। पहले तो हमें डेटा देना पड़ता है के मींस को, एंड दूसरी बात यस नंबर ऑफ क्लस्टर्स भी बताना पड़ता है। सो एन क्लस्टर्स वी कॉल इट एज नंबर ऑफ क्लस्टर्स। तो ये के मींस को दोनों बातें बताने पड़ेंगे। आप बोलोगे सर ये नंबर ऑफ क्लस्टर हम दो बताएंगे तो काफी काम सिंपल होगा के मींस का, यस। बट ये जो नंबर ऑफ क्लस्टर्स है ना, ये भी हम मैथमेटिकली फाइंड आउट करेंगे। सो आई विल टेल यू द टेक्निक हाउ टू फाइंड आउट नंबर ऑफ क्लस्टर्स। ओके, बट बेसिकली के मींस को ये दोनों चीजें देनी पड़ती है। ये 14 पॉइंट्स भी टोटल देने पड़ेंगे, नंबर ऑफ क्लस्टर्स भी देने पड़ेंगे। सो ये नंबर ऑफ क्लस्टर अभी हमने डिसाइड किया 2। So that means ultimately I'm asking k-means to divide these points into 2 clusters. तो अगर मैंने इन पॉइंट्स को 2 क्लस्टर्स में डिवाइड करने के लिए बोला के मींस को, तो के मींस क्या करेगा? के मींस का हमारा जो एक्सपेक्टेड आंसर है, जो से ह्यूमन बीइंग बोलेगा वैसे ही के मींस ने आंसर देना चाहिए। सो अगर मैंने इनको 2 क्लस्टर्स में डिवाइड किया तो दिस मस्ट बी 2 डिफरेंट क्लस्टर्स। तो ये पॉइंट अलग क्लस्टर में, ये पॉइंट्स अलग क्लस्टर में। सो दैट इज व्हाट एक्सपेक्टेड आंसर इज। ठीक है, तो केमिस्ट ने आपको ये जो 14 पॉइंट्स है, तो ये जो 14 पहले जो ये 7 पॉइंट है ये क्लस्टर 0 में आ रहा है ऐसे बोलेगा ये, एंड लास्ट वाले 7 पॉइंट है ये क्लस्टर 1 में आएगा। दैट इज व्हाट एक्सपेक्टेड आंसर फ्रॉम केमिस्ट। सो लेट्स सी हाउ केमिस्ट इज गोइंग टू क्लस्टराइज इन दिस वे। हाउ केमिस्ट इज गोइंग टू क्लस्टराइज इन दिस वे, तो ये अभी अंडरस्टैंड करते हैं मैथमेटिकली। ओके, सो लेट मी जस्ट रिमूव दिस and yes, so ये भी मैं हटा देता हूँ। now this is your random data and let me ask k-means that just we have to divide this data into 2 different clusters। ठीक है, तो अभी k-means काम कैसे करता है? ठीक है, सबसे पहले k-means को हमने बताया है कि what is data is and what is number of clusters। so n clusters we call it as नंबर ऑफ क्लस्टर। तो यहाँ पे केमिस्ट को पता है कि 2 क्लस्टर्स में हमें इसको डिवाइड करना है। तो केमिस्ट स्टार्ट कैसे करता है? ऑन दिस डेटा केमिस्ट रैंडमली इनिशियलाइजेस, सो इट रैंडमली इनिशियलाइजेस क्लस्टर सेंटर्स, क्लस्टर सेंटर्स, क्लस्टर सेंटर्स। अभी ये क्लस्टर सेंटर क्या होता है, लेट मी टेल यू। क्लस्टर सेंटर, अगर आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है या तो फिजिक्स में इंटरेस्ट है, तो लेट मी टेल यू इट इज द ज्योग्राफिकल मीन, it is the geographical mean, geometrical I must be, I must say geometrical mean of your cluster, geometrical mean of cluster। ठीक है, सो ज्योमेट्रिकल मीन मतलब अगर ये क्लस्टर है तो इसका सेंटर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अगर क्लस्टर हमारा ऐसा है तो इसका सेंटर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अगर हमारा क्लस्टर ऐसे है तो इसका सेंटर कहाँ पे आएगा? तो देखो ऑन एक्स एक्सिस ये सेंटर बन गया, ऑन वाई एक्सिस ये सेंटर बन गया। सो ये आना चाहिए आपका ज्योग्राफिकल ज्योमेट्रिकल मीन, ये आना चाहिए ज्योग्रामेट्रिकल मीन। सो ये सर्कल है, इसका ज्योमेट्रिकल मीन होता है आपका सेंटर। ये स्क्वायर का सेंटर, ये रेक्टेंगल का ये सेंटर बनेगा। अगर मैंने आपको बोला कि इसका बताओ मुझे ज्योग्राफिकल ज्योमेट्रिकल मीन, जो ज्योमेट्रिकल बोला ज्योग्राफिकल बोला दोनों सेम। इसका मैंने आपको पूछा लेट टेल मी geometrical mean of this particular regulated graph, और ये जो है ना ये एक स्टैंडर्ड डायग्राम नहीं, तो उसका आपको अगर ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है तो कैसे निकालोगे? सो ये जो मीन है ना, ये ज्योमेट्रिकल मीन, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है कि इसमें जो भी सारे पॉइंट्स है, इसमें जो भी सारे पॉइंट्स है, इन सब पॉइंट का जो एक्स मीन होता है, एक्स मीन मतलब सारे पॉइंट्स का जो एक्स वैल्यू है उनका मीन, एक्स मीन मतलब, तो वो मीन निकाला। यहाँ पे देखो जो सारे पॉइंट्स का एक्स का वैल्यू मीन है ये यहाँ पे आया, वाई का मीन यहाँ पे आया। सो ये रेक्टेंगल है इसलिए हमें समझ में आता है क्लियर कि यहाँ पे एक्स का मीन है, यहाँ पे वाई का मीन है। लेकिन इस ग्राफ में आपको क्या करना पड़ता है, सारे जो पॉइंट्स, अभी सारे पॉइंट्स मतलब एन पॉइंट्स वी आर हैविंग, एन पॉइंट्स। तो इसमें पहला पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, तीसरा पॉइंट है x3 y3, फोर्थ पॉइंट है x4 y4, लाइकवाइज ऐसे लास्ट पॉइंट है xn yn।
तो ये सारे पॉइंट्स मतलब जो भी डायग्राम है इसके इसके वाले पॉइंट्स है, लेट्स से। ठीक है, अभी इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ एक्स का जो वैल्यूज है, सारे एक्स के वैल्यूज, इनका मीन ले लो। इन सब का मीन मतलब आपके क्लस्टर सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट। सो इसका मीन कैसे निकालेंगे हम मैथमेटिकली, हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन दैट, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n, that is xi, मतलब xi मतलब that is summation, that is x1 plus x2 plus x3 plus x4 till xn, and divide by what, divide by n. So ये बन गया मीन ऑफ x वैल्यूज। y वैल्यूज का मीन कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n ऑफ yi। सो इनके जो सारे y वैल्यूज है उनका मीन निकालने के लिए वी जस्ट डिवाइड इट बाय n। तो जो क्लस्टर सेंटर होता है, क्लस्टर सेंटर, सो क्लस्टर सेंटर के जो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, क्लस्टर सेंटर के जो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट होते हैं वो ऐसे होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट इज लाइक दिस, सो 1/n ऑफ समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n ऑफ एक्स आई। सो ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट मीन ऑफ ऑल एक्स आई वैल्यूज, एंड वाई कोऑर्डिनेट कैसे बनेगा, 1/n summation of I is equal to 1 to n of yi values, yi values. So this is how do we find out cluster center, this is how do we find out cluster center. So ये ध्यान में रखो, this is just like your geometrical mean of any area, ठीक है, और any points। अभी यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आपने रैंडमली इनिशियलाइज करने के लिए बोला। द रीजन इज दैट अभी तक हमें पता ही नहीं कि क्लस्टर कहाँ पे है। ये जो दो क्लस्टर्स है ना, अगर आपको क्लस्टर्स मैंने बता दिया कि ये क्लस्टर है, इसका ज्योग्राफिकल मीन निकालो, तो आप बोलोगे यस इनके सबके एक्स वैल्यूज का मीन मतलब यहाँ पे कुछ तो आएगा, एक्स वैल्यूज का मीन, वाई वैल्यूज का मीन मतलब यहाँ पे कहाँ पे तो आएगा, तो ये मतलब इनका ज्योग्राफिकल मीन यहाँ पे कुछ तो आएगा। ये तभी आप बता सकते हैं अगर मुझे पता है कि दिस इज योर क्लस्टर। लेकिन अभी तक तो हमें पता ही नहीं कि कहाँ पे क्लस्टर है, बिकॉज दिस इज योर लाइक मैथमेटिकल सिस्टम। सो लेट मी जस्ट रिमूव दिस। ओके, सो अभी तक हमें पता ही नहीं, सो इसलिए मैं क्या करूंगा, आई विल जस्ट इनिशियलाइज दिस क्लस्टर सेंटर्स रैंडमली एनीवेयर, रैंडमली एनीवेयर। सो क्लस्टर सेंटर में अभी रैंडमली इनिशियलाइज कर रहा हूँ, एंड लेट मी यूज द ग्रीन कलर फॉर क्लस्टर सेंटर। सो रैंडमली मैंने क्लस्टर सेंटर जो है, एक क्लस्टर सेंटर यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। कितने क्लस्टर सेंटर इनिशियलाइज करने हैं, जितने क्लस्टर्स बोले, तो दो क्लस्टर बोले तो दो क्लस्टर्स के क्लस्टर सेंटर्स में इनिशियलाइज करता हूँ। फॉर एग्जांपल दूसरा क्लस्टर सेंटर यहाँ पे इनिशियलाइज किया, तो दिस इज योर फर्स्ट क्लस्टर सेंटर एंड दिस इज योर सेकंड क्लस्टर सेंटर। दो बनाए बिकॉज दो क्लस्टर बनाने के लिए हमने के मींस को बोला है। तो ये रैंडमली इनिशियलाइज हुए, ऐसा नहीं कि मैंने ये कुछ सोच समझ के ना लोकेशंस पुट अप किए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये रैंडमली है। सिर्फ एक ध्यान में रखना कि ये जो क्लस्टर सेंटर्स है ना, ये ओवरलैप नहीं होने चाहिए, ओवरलैप मतलब एक के ऊपर दूसरा नहीं आना चाहिए। इसका रीजन क्या है मैं आगे जाके आपको समझ में आएगा, व्हाई व्हाई वी शुड नॉट ओवरलैप देम। तो ये डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यहाँ पे दूसरा किया तभी भी चलेगा, नजदीक एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक किया तभी भी चलेगा, सिर्फ ओवरलैप नहीं होने चाहिए, ठीक है। सो अभी फिलहाल आपको समझने के लिए मैं इनको दूर दूर रखता हूँ, ठीक है। So this is what your first step is. This is what your first step is. So randomly initialize cluster center. Okay, so let me just remove everything from this so that I can just use this for remaining steps. So ये जो ऐसे formulas है ना, आपको समझ में आना चाहिए कि what they mean. So let me just remove this and yeah, it's okay, no issues. सो रैंडमली इनिशियलाइज करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सो नेक्स्ट स्टेप आपको करना है लाइक डिस्ट्रीब्यूट 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 डेटा पॉइंट्स, डिस्ट्रीब्यूट डेटा पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू क्लस्टर सेंटर्स, क्लस्टर सेंटर्स। अभी इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि हर एक पॉइंट को हम पकड़ेंगे, डिसाइड करेंगे कि वो इस क्लस्टर सेंटर के साथ जाएगा कि इस क्लस्टर सेंटर के साथ जाएगा। सो दैट वी आर गोइंग टू डिसाइड। अभी किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे, आपको क्या लगता है कि ये जो पॉइंट है, मुझे बताओ, ये जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ ये पॉइंट,
ये C1 के साथ जाना है कि C2 के साथ जाना चाहिए? ये जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किया, ये C1 के साथ जाना चाहिए कि C2 के साथ जाना चाहिए? मतलब ये ऐसे कंसिडर करो, ये दो ग्रुप्स है। जैसे हमारे कॉलेज में या तो स्कूल में ग्रुप होते थे ना, तो ये दो बंदे C1 एंड C2, तो आप C1 के साथ जाओगे कि C2 के साथ जाओगे? यहाँ पे क्या लगता है आपको एज ए ह्यूमन बीइंग? सो वी मस्ट गो विथ C2, यहाँ पे वी मस्ट गो विथ C2 फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इस पॉइंट ने कहाँ पे जाना चाहिए? C2 को जाना चाहिए। इस पॉइंट ने भी कहाँ पे जाना चाहिए? और C2 पे जाना चाहिए। ये पॉइंट भी C2 के साथ जाएगा, ये पॉइंट भी C2 के साथ जाएगा। अभी ये जो पॉइंट है ना, इसके बारे में आई एम नॉट श्योर। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इसको किसके साथ जाना चाहिए? C1 के साथ। ये पॉइंट इसको किसके साथ जाना चाहिए? C1 के साथ। आई थिंक ये जो भी पॉइंट है ना, ये भी पॉइंट C1 के साथ जाना चाहिए। अभी ये किसके बेसिस पे हमने डिसाइड किया? सो दैट इज व्हाट डिस्टेंस इज। एंड कौन सा डिस्टेंस हमने यूज किया? इक्लिडियन डिस्टेंस हमने यूज किया। यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज किया। यूक्लिडियन डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो यूक्लिडियन डिस्टेंस मतलब द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। सो ये जो पॉइंट है ना, इसको हमें डिसाइड करना है कि ये C1 के साथ जाएगा कि C2 के साथ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? लेट मी यूज अनदर कलर। सो ये जो पॉइंट है ना, इसका ये एक डिस्टेंस हम निकालेंगे एंड दूसरा ये एक डिस्टेंस निकालेंगे। तो अगर ये D1 है एंड ये D2 है, तो हम देखेंगे ये D1 कम है कि D2 कम है। अगर D1 कम है तो ये जो पॉइंट है ना, C1 के साथ जाएगा, एंड अगर D2 कम है तो C2 के साथ जाएगा। सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट्स अमंग क्लस्टर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है ना, आई थिंक D1 कम है, तो ये C1 के साथ जाएगा। सो लेट मी जस्ट राइट डाउन दैट। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट राइट डाउन दैट ये जो पॉइंट है ना, ये C1 के साथ जाए, उसके हिसाब से ये पॉइंट भी C1 के साथ जाएगा। सो ये इफ यू नो मैथमेटिक्स वेरी वेल, आपको एक बात समझ में आया होगी कि कौन से पॉइंट C1 के साथ जाएंगे, कौन से पॉइंट C2 के साथ जाओगे, ये आप मैथमेटिकली भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे मैथमेटिकली? मतलब जस्ट डायरेक्टली ज्योमेट्रिकली आई मस्ट से, हम क्या करते हैं, C1 एंड C2 के बीच में एक लाइन निकालते हैं एंड उसको एक परपेंडिकुलर लाइन निकालेंगे। लेकिन वो जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये इन दोनों के डिस्टेंस के बीच में चली जाएगी। फॉर एग्जांपल दिस इज द लाइन। तो इसको परपेंडिकुलर अगर आपने निकाला, तो दैट परपेंडिकुलर इज जस्ट गोइंग टू बी लाइक दिस। तो ये परपेंडिकुलर लाइन है दैट इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम C1 एज वेल एज C2। तो इस लाइन का कोई भी पॉइंट ले लो, अगर ये पॉइंट लिया, दैट इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम C1 एज वेल एज C2। अगर आपने ये पॉइंट लिया, दैट इज एट द सेम डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस आप देखा या तो ये डिस्टेंस देखो, ये सेम रहेगा। या तो ये पॉइंट ले लो, ये भी पॉइंट, ये पॉइंट भी सेम है C1 से भी एंड C2 से भी। सो सच काइंड ऑफ लाइन यू कैन जस्ट ड्रॉ इमेजिनरी, और जस्ट वी कैन सी इन माइंड, यू कैन जस्ट ड्रॉ सच लाइन। तो इसके ऊपर वाले सारे पॉइंट जाएंगे C1 के साथ, क्योंकि इसके ऊपर वाले पॉइंट C1 के नजदीक होते, इसके नीचे वाले C2 के नजदीक होते। So if we use such kind of technique, so just let me remove this thing. तो ये अभी मैं रिमूव करता हूँ because I'm going to use this technique to just redistribute the points. I'm just going to use this technique to redistribute the points. Okay, एक point चला गया, let me just draw that point. यहाँ पे कुछ तो point था, ठीक है। सो इसके ऊपर वाले पॉइंट C1 के साथ, इसके नीचे वाले C2 के साथ, सो दैट इज यूजिंग दिस इमेजिनरी लाइन। तो उस केस में आपका जो क्लस्टर C1 है, ये जो पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट होंगे ये ऐसे होंगे। सो ये जो है ना, ये जाएंगे C1 के साथ, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट गए C1 के साथ, क्योंकि ये लाइन के ऊपर है। एंड ये जाएंगे C2 के साथ, ये जाएंगे C2 के साथ। ओके, सो यस, दिस इज व्हाट योर फर्स्ट स्टेप इज। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट्स अमंग
क्लस्टर सेंटर, जो पॉइंट जिस क्लस्टर के नजदीक, उसमें इसको हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, जब मैं इनको रिडिस्ट्रीब्यूट हो करता हो, सो नेक्स्ट स्टेप इज दैट कैलकुलेट क्लस्टर सेंटर, कैलकुलेट क्लस्टर सेंटर्स, क्लस्टर सेंटर्स। अभी हम कैलकुलेट करेंगे क्लस्टर सेंटर्स। कैलकुलेट मतलब इसको मैं बोलूंगा रिकैलकुलेट भी, रिकैलकुलेट भी बोल सकता हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल हमारे पास C1 C2 है, लेकिन हमें नए C1 C2 चाहिए। तो इसको रिकैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, योर दिस टेक्निक, या तो ये फॉर्मूला के हिसाब से। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से हम जो C1 एंड C2 है, ये शिफ्ट करेंगे या तो चेंज करेंगे। तो लेट मी जस्ट रिमूव दिस रेड लाइंस। सो उस रेड लाइंस को अगर मैंने रिमूव किया, सो लेट मी जस्ट रिमूव दिस, या ये भी रिमूव करता हूं मैं। ओके। तो अभी ये अगर आप पॉइंट देख सकते हैं, तो इन पॉइंट्स के हिसाब से नया आपका क्लस्टर सेंटर फाइंड आउट किया जाएगा। सो टू फाइंड आउट द न्यू क्लस्टर सेंटर, अभी ये जो क्लस्टर है ऊपर वाला, उनका न्यू जो क्लस्टर सेंटर है वो कहाँ पे आएगा, देखो उसका एक्स वैल्यू, इनका जो क्लस्टर सेंटर आएगा उसका एक्स वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन सब पॉइंट्स का एक्स लेंगे एंड उनका मीन निकालेंगे। तो दिस इज फॉर एग्जांपल 4, दिस इज 5, दिस फॉर एग्जांपल 8, दिस इज 9, दिस इज 10, दिस इज 8, लेट्स से। इन सबको मिलाएंगे, उसको डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करेंगे। आई थिंक उनका जो मीन है ना, इनके सब ये जो सब पॉइंट्स है, ये ऊपर वाले क्लस्टर के ये जो सब पॉइंट्स है ना, इनका जो x का मीन आएगा दैट विल बी अराउंड, लेट मी जस्ट राइट डाउन हियर, लेट मी जस्ट राइट डाउन हियर, यहाँ पे कुछ तो। सो आप बोलोगे एग्जैक्टली इनके इनके बीच में क्यों नहीं, सी देखो यहाँ पे कैलकुलेट करके ही लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं बाय अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे देखो 4 पॉइंट्स थे, ये 2 पॉइंट्स थे, तो बिकॉज ऑफ दिस 4 पॉइंट्स ये थोड़ा सा सेंटर से राइट को शिफ्ट होगा, सो दैट इज व्हाई मैंने यहाँ पे लिखा। उनका y कहाँ पे होगा, सो यहाँ पे देख सकते हैं इस रेंज में ही कहाँ पे होगा, सो थोड़ा सा नीचे सारे पॉइंट्स है और ऊपर सिर्फ 1-2 पॉइंट ही है, तो उसके हिसाब से यहाँ कहाँ पे तो y उनका मीन आएगा। सो इफ यू जस्ट कनेक्ट दिस आउट, आपका जो क्लस्टर सेंटर बनेगा वो यहाँ पे कहाँ पे तो बनेगा। तो इसका मतलब ये जो क्लस्टर सेंटर है वो शिफ्ट होके यहाँ से आ गया यहाँ पे। सो दैट इज कैलकुलेटेड न्यू क्लस्टर सेंटर फॉर दिस पॉइंट्स। उसके हिसाब से इस क्लस्टर सेंटर को अगर मैंने कैलकुलेट किया, तो इनका जो x है, सो आई मस्ट से दैट x मस्ट बी, अभी ये बीच में एग्जैक्टली नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे काफी सारे पॉइंट्स है, तो लेट मी जस्ट टेक x वैल्यू ओवर हियर एंड उनका जो y वैल्यू है, तो आई थिंक ये अराउंड यहाँ पे आएगा। सो इनका जो क्लस्टर सेंटर, लेट मी जस्ट राइट डाउन ओवर हियर, तो इनका जो क्लस्टर सेंटर है आफ्टर कैलकुलेशन ये आएगा यहाँ पे। तो आपका C2 यहाँ पे शिफ्ट होगा, C1 यहाँ पे शिफ्ट हुआ। दैट इज व्हाट दैट इज व्हाट कैलकुलेशन ऑफ क्लस्टर सेंटर्स। ये किस बेसिस पे किया, यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ये रिकैलकुलेट क्लस्टर सेंटर के। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है फिर से स्टेप 3, डिस्ट्रीब्यूट। इसको मैं बोल सकता हूँ रीडिस्ट्रीब्यूट डेटा पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू क्लस्टर सेंटर। फिर से वही कि जो भी क्लस्टर सेंटर है उसके हिसाब से फिर से पॉइंट्स को रिडिस्ट्रीब्यूट करो, जो भी पॉइंट्स है उसके हिसाब से, जो भी क्लस्टर सेंटर है उनके हिसाब से फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट करो। सो लेट मी सी ओवर हियर। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जो भी क्लस्टर बाउंड्रीज है ना वो मैं चेंज करता हूँ, इनको मैं हटा देता हूँ क्योंकि आपके बाउंड्री चेंज होंगे अभी। सो आप अभी देख सकते हैं पॉइंट्स। नाउ लेट्स रीडिस्ट्रीब्यूट द पॉइंट्स, लेट्स रीडिस्ट्रीब्यूट द पॉइंट्स। सो लेट मी जस्ट रीडिस्ट्रीब्यूट द पॉइंट्स। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये जो भी पॉइंट्स है कौन सा किस क्लस्टर के साथ जाएगा। सो ये जो है ना, ये एक क्लस्टर है, ये एक क्लस्टर है। कैन आई से दैट ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये इस क्लस्टर के साथ जाएगा। सो ये मैथमेटिकली कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनके बीच में लाइन निकालो, उनके एग्जैक्टली मिडल में से परपेंडिकुलर लाइन निकालो। सो इसके ऊपर वाले पॉइंट्स C1 के साथ, इसके नीचे वाले पॉइंट्स C2 के साथ ऑब्वियसली। तो उसके हिसाब से आपका जो नया क्लस्टर सेंटर क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट वुड बी लाइक दिस। सॉरी, ये होगा ऊपर वाला क्लस्टर
एंड ये होगा नीचे वाले क्लस्टर के साथ ये पॉइंट्स. Okay, so let me just remove these boundaries again. So let me just remove this one. Okay, let me just remove this white line because ये सिर्फ imaginary मैंने consider किया था आपको जल्दी समझने के लिए. That's it. ये भी मैं हटाता हूँ. या इसका मतलब आपका जो स्टेप 3 था ये हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू क्लस्टर सेंटर्स. इसके बाद में क्या करेंगे, फिर से नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, रिकैलकुलेट क्लस्टर सेंटर्स. रिकैलकुलेट क्लस्टर सेंटर्स. तो फिर से जाता हूं मैं, अभी रिकैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा. अभी इस डेटा के बेसिस पे मैं डायरेक्टली अभी लिख सकता हूँ, आप भी देख सकते हैं अभी प्रॉपरली, थोड़ा सा बहुत प्रॉपरली पॉइंट्स आ गए यहाँ पे. तो ये जो पॉइंट्स है, ये 1 2 3 4 5 6, ये इतने 6 पॉइंट्स है इस क्लस्टर में. तो कैन आई से दैट ये अराउंड एग्जैक्टली ये सेंटर में आ जाएगा, बिकॉज ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है. तो इनका एक्स यहाँ पे आएगा एंड इनका वाई जो है अराउंड यहाँ पे आएगा. सो अराउंड ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. कहाँ से, यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया यह पॉइंट. इन पॉइंट के हिसाब से आप देख सकते हैं उनका जो एक्स है, अभी देखो एक्स जो है इनका, तो काफी पॉइंट यहाँ पे, एक ही पॉइंट इधर है. तो बिकॉज ऑफ दिस वन पॉइंट, ये अगर ये एक पॉइंट नहीं होता तो आई थिंक ये एक्स यहाँ पे कहाँ पे तो आता, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस वन पॉइंट ये थोड़ा सा राइट को शिफ्ट होगा. सो अराउंड दिस आपका जो नया कैलकुलेटेड क्लस्टर सेंटर होगा ये यहाँ पे होगा. सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी शिफ्टेड आउट. सो नया कैलकुलेशन हो गया आपके पॉइंट्स का. सो यस, रिकैलकुलेटेड न्यू क्लस्टर सेंटर्स. उसके हिसाब से फिर से ऊपर थर्ड स्टेप को गए, रीडिस्ट्रीब्यूट डेटा पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू क्लस्टर सेंटर्स. फिर से मैं रीडिस्ट्रीब्यूट करता हूँ एंड रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, इसलिए आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव दिस क्लस्टर बाउंड्रीज. तो ये क्लस्टर बाउंड्री मैं अभी रिमूव करता हूँ, ये वाला. ठीक है, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ एंड लेट मी फाइंड आउट न्यू क्लस्टर बाउंड्रीज. तो यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं इन जनरल, जस्ट इसके बीच में व्हाइट लाइन निकालो, ये एग्जैक्टली जो है इनके बीच में जाएगा. सो इसके राइट ऊपर वाले पॉइंट्स पहले क्लस्टर के साथ, नीचे वाले पॉइंट दूसरे क्लस्टर के साथ. सो लेट मी जस्ट ड्रॉ द बाउंड्रीज. सो बाउंड्रीज में ड्रॉ करूंगा तो दैट बाउंड्रीज आर गोइंग टू बी लाइक दिस. सो दिस इज गोइंग टू बी योर क्लस्टर 1 एंड दिस इज गोइंग टू बी योर क्लस्टर 2. तो ये नए क्लस्टर्स फाइंड आउट किए हमने. अभी ये नए क्लस्टर का बाउंड्री निकाला, तो लेट मी जस्ट रिमूव व्हाइट लाइंस. या तो ये हो गया आपका स्टेप 3, रिडिस्ट्रीब्यूट डेटा पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू क्लस्टर सेंटर्स. फिर से रिकैलकुलेट क्लस्टर सेंटर, रिकैलकुलेट क्लस्टर सेंटर. सो लेट मी जस्ट गो एंड रिकैलकुलेट क्लस्टर सेंटर. तो क्लस्टर सेंटर, कैन आई से दैट ये जो क्लस्टर सेंटर अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट ये पिछली बार इस क्लस्टर में था, इसलिए थोड़ा सा राइट को शिफ्ट हुआ था ये. तो अभी जो पॉइंट है उसके हिसाब से थोड़ा सा अभी सेंटर में आ जाएगा. सो ये जो क्लस्टर सेंटर है ना, ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये पॉइंट अभी चला गया दूसरे क्लस्टर में. तो अकॉर्डिंग टू एज पर दिस क्लस्टर पॉइंट्स, ये इसका मीन यहाँ पे आता है. एंड ये जो क्लस्टर पॉइंट है इसमें एक नया पॉइंट ऐड हो गया. तो वैसे तो एक्स में चेंज नहीं होगा, लेकिन आप देख सकते हैं ये वाई में चेंज होगा, क्योंकि एक पॉइंट काफी नीचे, ये पॉइंट ऐड हुआ है नया क्लस्टर में, ये नए क्लस्टर में. तो थोड़ा सा ये नीचे शिफ्ट होगा. सो लेट मी जस्ट राइट डाउन दैट ओवर हियर. तो यहाँ से ये थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट होगा. ठीक है, तो अभी फिलहाल नए क्लस्टर सेंटर्स हमने फाइंड आउट किए एज पर दिस डेटा पॉइंट्स. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, रिकैलकुलेट क्लस्टर सेंटर्स. रिकैलकुलेट क्लस्टर सेंटर्स. तो अभी मैं क्या करूंगा, रिकैलकुलेट करता हूं. आई एम नॉट जस्ट इरेजिंग दिस क्लस्टर बाउंड्रीज, बिकॉज अभी मैं रिडिस्ट्रीब्यूट करता हूँ. तो रिडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दीज आर क्लस्टर सेंटर्स. सो ये इनको मैं कनेक्ट करता हूँ व्हाइट लाइन से, एंड व्हाइट लाइन से कनेक्ट करने के बाद इनके बीच में से परपेंडिकुलर लाइन, तो ये बीच में ऐसा कंसिडर करो. तो इसके ऊपर वाले C1 क्लस्टर में, नीचे वाले C2 क्लस्टर में. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक भी पॉइंट इधर का उधर नहीं गया, उधर का इधर नहीं गया. पिछली बार ये सिर्फ एक पॉइंट की वजह से हुआ था, इधर उधर हुआ था, ये पॉइंट इस क्लस्टर से इस क्लस्टर में गया. लेकिन अभी के डिस्ट्रीब्यूशन में एक भी पॉइंट इधर का उधर नहीं हुआ, एज इट इज क्लस्टर है. तो इसका मतलब कैन आई से दैट योर क्लस्टर points or cluster centers are not going to be changed now.
क्योंकि एक भी पॉइंट इधर का उधर नहीं, मतलब पिछले क्लस्टर में यही पॉइंट्स थे, अभी के क्लस्टर में यही पॉइंट है, तो मुझे बताओ ये क्लस्टर सेंटर अभी शिफ्ट होगा क्या, चेंज होगा क्या? यस और नो, आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन कि अगर मेरा एक भी पॉइंट इधर का उधर नहीं गया है तो आपके क्लस्टर का जो सेंटर है ये चेंज होगा कि नहीं होगा, यस और नो? अगर एक भी पॉइंट चेंज नहीं हुआ तो ये जो आपका जो डेफिनेशन है इसमें सारे पॉइंट्स एज इट इज है, तो इसका मतलब क्लस्टर सेंटर आपका चेंज होगा कि नहीं होगा, दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन। यू कैन जस्ट पुट योर आंसर इनटू चैट बॉक्स। अगर एक भी पॉइंट इधर का उधर नहीं गया, या तो आई मस्ट से दैट इफ योर पॉइंट्स आर कांस्टेंट एज इट इज, whether your cluster center is going to be changed. ओके सो यस, काफी लोगों ने नो बोला है। अगर किसी को एस लग रहा है तो यू कैन जस्ट आस्क मी, क्योंकि देखो ये सिर्फ लॉजिकल थिंग है कि अगर एक भी पॉइंट इधर का उधर नहीं जा रहा है तो पॉइंट्स आर सेम एज इट इज, तो उनका मीन भी वही आएगा। सो पहले भी हमने इन्हीं पॉइंट्स को कंसिडर करके मीन निकाला है, अभी भी इन्हीं पॉइंट्स को निकाल के मीन निकालना है, तो वो मीन वहीं पे आएगा जहां पे अभी आपका क्लस्टर सेंटर है। तो इसका मतलब क्लस्टर सेंटर्स आर नॉट गोइंग टू बी चेंज। तो भी आप कितनी भी बार ये डिवाइड करने के लिए ट्राई करो, ये डिवाइड करो, ट्राई करो, लेकिन क्लस्टर सेंटर्स अभी चेंज नहीं होने वाले। सो इसका मतलब नाउ वी हैव टू स्टॉप, एंड दैट इज आवर फिफ्थ स्टेप। सो फिफ्थ स्टेप इज व्हाट? स्टॉप if cluster centers cluster centers are not changed, are not changed। तो अभी के केस में कैन आई से दैट दीज आर नॉट चेंज्ड एंड नाउ वी हैव टू स्टॉप। तो इसका मतलब अभी हम स्टॉप करेंगे। सो लेट मी जस्ट रिमूव दिस इमेजिनरी व्हाइट लाइन। ओके ये मैंने लिया है ये, एंड यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं दीज आर योर क्लस्टर फॉर्मेशन। सो दीज आर योर क्लस्टर्स। सो जैसे एज ए ह्यूमन बीइंग जैसे हमने सोचा था वही क्लस्टर्स हमें मिले। एज ए ह्यूमन बीइंग हमने जो सोचा था वही क्लस्टर्स हमें मिले। ओके, एंड क्लस्टर सेंटर्स देखो कैसे चेंज हो गए। एंड दिस इज हाउ mathematically we can just split our data into two different clusters, and ये काम करेगा आपका डेटा कैसे भी हो। आपका इनिशियली क्लस्टर सेंटर्स कहाँ पे भी हो, आप देख सकते हैं इनिशियली आपके क्लस्टर सेंटर्स कहाँ पे थे। इनिशियली आपका क्लस्टर सेंटर यहाँ पे था, इसका यहाँ पे था, लेकिन मूव करके करते कहाँ पे आया, यहाँ पे ही आया एग्जैक्टली इसका भी यहाँ पे ही आया एग्जैक्टली। So this is what beauty of mathematics, and this is how your data is going to be distributed। आपका डेटा कैसे भी हो, जैसे हम ह्यूमन बीइंग आइडेंटिफाई कर सकते, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डेटा इज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड और डिवाइडेड इनटू क्लस्टर, वैसे ही के मींस फाइंड आउट कर देता है। and this is what the algorithm for that is this is what the algorithm for that। okay, so I think ये आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा, and let's go and implement this particular algorithm। तो algorithm में आपको पता होगा अभी तक तो हमने क्या किया है, नंबर ऑफ क्लस्टर्स 2 लिए है। so just we can use this particular algorithm for dividing your data points into different clusters। okay, अभी तक के explanation में if you have any doubt you can ask me। हाँ, yes। हो याच्यामध्ये जे दोन जे जे जो टू लिया है ना हमने नंबर ऑफ क्लस्टर्स, ये हमने केमिन्स को प्रोवाइड किया है। केमिन्स खुद से फाइंड आउट नहीं कर सकता नंबर ऑफ क्लस्टर, ये हमें देना पड़ता है। हाँ, नहीं क्लस्टर सेंटर्स फाइंड आउट करके हमें क्या करना है कि जब तक हम क्लस्टर सेंटर नहीं फाइंड आउट करेंगे तब तक हम जो डेटा पॉइंट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली प्रॉब्लम इज दैट if I ask k means to distribute this data, let me just take example। अगर मैंने ये डेटा लिया,
ये डेटा पॉइंट्स है, दीज आर सम डेटा पॉइंट्स। मुझे बताओ इसमें मैंने के मीन्स को बोला कि मैंने ह्यूमन बीइंग को बोला कि दो क्लस्टर्स बनाओ, मैंने ह्यूमन बीइंग को बोला कि दो क्लस्टर्स बनाओ, तो एज ए ह्यूमन बीइंग आप क्या बोलोगे, सर दिस इज गोइंग टू बी वन क्लस्टर, दिस मस्ट बी द अनदर क्लस्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन मैंने के मीन्स को पूछा, इफ आई आस्क द सेम क्वेश्चन टू के मीन्स की ये जो सारे पॉइंट्स है ना इनको दो क्लस्टर्स में डिवाइड करो, तो के मीन्स में अगर ऐसा किया तो चलेगा क्या? के मीन्स बोलेगा दीज आर गोइंग टू बी इन वन क्लस्टर एंड दीज आर गोइंग टू बी इनटू अनदर क्लस्टर, इज दैट राइट वन? नो। तो ये आपको अचीव करने के लिए ये जो स्टेप्स है ये फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ता है क्लस्टर सेंटर बेसिकली, और क्लस्टर सेंटर कैलकुलेट करने की वजह से बेसिकली आपके पॉइंट्स प्रॉपरली डिवाइड होते जाते हैं। सो क्लस्टर सेंटर इज लाइक, देखो जैसे ये मूव हुए है ना, ये मतलब ऐसे मूव हो जाते हैं कि ये एग्जैक्टली जो आपको क्लस्टर लग रहा है उसके सेंटर में एग्जैक्टली मूव होते जाता है। सो दिस इज जस्ट द सेंटर पॉइंट ऑफ योर क्लस्टर, it is just center point of your cluster. Okay, so let's go and implement this algorithm, and basically I'm just going to use the same data, and let me just ask this particular algorithm to divide this all points into 5 clusters, let me call it as। तो मैं इसको बोलूंगा 5 क्लस्टर्स में डिवाइड करो। इसको मैं 2 क्लस्टर्स में भी बोल सकता हूँ, 3 में भी बोल सकता हूँ, 4 में भी बोल सकता हूँ, 5 में भी बोल सकता हूँ। अभी 5 क्यों बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज हमें पता है कि ये 5 में डिवाइड करेंगे तो ये एक क्लस्टर बनेगा, ये दूसरा बनेगा, ये तीसरा बनेगा, ये फोर्थ बनेगा, ये फिफ्थ बनेगा। ये हमें पता है इसलिए हम क्रॉस चेक कर सकते हैं उसको। अगर आपको चाहिए तो आप 2 क्लस्टर्स में भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो फिलहाल ये जो केमिस है इसको 2 प्रॉब्लम्स में मैं डिवाइड करता हूँ। पहली बात तो जो भी नंबर ऑफ क्लस्टर्स हमने दिए है उसके हिसाब से सारे पॉइंट्स को डिवाइड करो। एंड ये आपका दूसरा प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम ये है कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने बनने ये कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि के मींस तो ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि कितने क्लस्टर्स बनने चाहिए। तो इसके लिए जो मैथमेटिक्स है ये बाद में देखेंगे हम। फिलहाल के मींस को हम खुद की तरफ से देंगे कि 5 क्लस्टर्स में इसको डिवाइड करो। तो उस केस में अगर मैंने ये डेटा दिया के मींस को एंड बोला 5 क्लस्टर्स में डिवाइड करो, तो के मींस में एक्सपेक्टेड आंसर क्या है, हमें के मींस ने क्या करना चाहिए, के मींस ने ये क्लस्टर बनना चाहिए, ये बनाना चाहिए, एक बनाना चाहिए, ये एक बनाना चाहिए, ये एक बनाना चाहिए। दैट इज व्हाट एक्सपेक्टेड आंसर इज। लेकिन अगर के मींस गलती करता है तो के मींस ऐसे भी कर सकता है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैथमेटिक्स गलत तो ये एक क्लस्टर बना, ये दूसरा क्लस्टर बना, ये तीसरा क्लस्टर बना, ये फोर्थ क्लस्टर बना, ये फिफ्थ क्लस्टर बना, इट माइट हैपन। लेकिन नहीं, एज ए ह्यूमन बीइंग अगर हमें लग रहा है कि ऐसे बनने चाहिए तो केमिस ने भी यही एक्सपेक्टेड आंसर देना चाहिए। तो केमिस को हम हर एक पॉइंट का क्लस्टर पूछेंगे एंड विल सी कि केमिस ऐसे ही आंसर देता है कि नहीं देता है, ठीक है। सो इसलिए केमिस को हम 5 बोलेंगे, देखते 5 क्लस्टर्स को ये कैसे बनाता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर डेटा इज एंड लेट मी जस्ट यूज के मीन्स। तो के मीन्स के लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। सो फ्रॉम sklearn डॉट ओके, sklearn में या क्लस्टर import k means, I think so, that is k means is the name of library। ये रटने की जरूरत नहीं, जनरली याद आता है बाद में जाके, ठीक है। सो के मीन्स, अभी ये जो के मीन्स है ना, सेम लाइक योर मॉडल, आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ मॉडल। के मीन्स का मॉडल एक बनाएंगे। सिर्फ ये जो के मीन्स का मॉडल है इसको हमें एक चीज बतानी पड़ती है। पहली बात तो हम इसको बताएंगे नंबर ऑफ क्लस्टर्स, एन क्लस्टर्स। तो नंबर ऑफ क्लस्टर्स आई एम गोइंग टू टेल दैट, 5 बोला ना मैंने, 5 क्लस्टर्स में डिवाइड करो ऐसे मैंने इसको बोल दिया, ठीक है। सो नंबर ऑफ क्लस्टर्स इज इक्वल टू 5, दैट्स इट। अभी इस मॉडल को हम करेंगे फिट। फिट करेंगे इसका मतलब इसके ऊपर अभी ये तो बता दिया हमने नंबर ऑफ क्लस्टर 5 क्या है, तो इसके ऊपर अभी हम बताएंगे कि ये जो x है इस x के ऊपर के मींस का एल्गोरिदम रन करो। मींस ये जो एल्गोरिदम हमने डिस्कस किया ये वाला। तो यहाँ पे देखो n नंबर ऑफ क्लस्टर्स हमने 5 लिए, तो यहाँ पे रैंडमली इनिशियलाइज कितने क्लस्टर्स होंगे, 5 क्लस्टर सेंटर्स होंगे रैंडमली इनिशियलाइज।
ठीक है, 5 क्लस्टर सेंटर्स रैंडमली इनिशियलाइज हो गए। उसके बाद में जो सारे पॉइंट्स है उसको 5 क्लस्टर सेंटर्स में डिवाइड किया जाएगा। बाद में जो भी क्लस्टर्स है उनके क्लस्टर सेंटर्स रीडिस्ट्रीब्यूट सॉरी रिकैलकुलेट किए जाएंगे क्लस्टर सेंटर्स। बाद में फिर से उनको डिस्ट्रीब्यूट करो एज पर द क्लस्टर सेंटर्स, फिर से क्लस्टर सेंटर्स नए कैलकुलेट करो, फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट करो। सो ये जो एल्गोरिदम है ये रन किया जाएगा इनटू डॉट फिट। तो डॉट फिट में ये कोड है। सो वंस वंस इफ आई डू दैट, ये देखो ये हो गया रन। तो इसका मतलब जो भी केमिस है ये रन हो गया। भी आप बोलोगे सर ये जो केमिस रन हुआ मतलब ये क्लस्टर सेंटर्स कैलकुलेट किए होंगे उसने, तो हाउ टू सी दैट क्लस्टर सेंटर्स? तो क्लस्टर सेंटर्स अगर आपको देखने तो मॉडल डॉट क्लस्टर सेंटर्स में आपको क्लस्टर सेंटर्स मिलेंगे। सो दीज आर क्लस्टर सेंटर्स। सो दीज आर क्लस्टर सेंटर्स। तो आप देख सकते हैं पहला जो क्लस्टर सेंटर है ये है 88, मतलब ये एक्स एक्सिस पे 88 एंड वाई एक्सिस पे 17। तो एक्स एक्सिस पे 88, 88 मतलब यहाँ पे कहाँ पे, तो वाई एक्सिस पे कितना है 17 ना। तो ये 88 यहाँ पे 17 यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कहाँ पे, तो एक क्लस्टर सेंटर है। दूसरा क्लस्टर सेंटर कहाँ पे 25 79 पे, 25 79। तो 25 यहाँ पे 79 कहाँ पे है यहाँ पे। सो यहाँ पे एक क्लस्टर सेंटर है। तीसरा क्लस्टर सेंटर कहाँ पे 55 49 पे, 55 मतलब यहाँ पे एंड 49 49 मतलब यहाँ पे। तो यहाँ पे एक क्लस्टर सेंटर है। तो देखो ये 5 क्लस्टर सेंटर्स तो इसने बना दिए। तो मैं क्या करता हूँ इसको विजुअलाइज करता हूँ, क्लस्टर सेंटर्स को विजुअलाइज करता हूँ। सो व्हाट आई विल डू, ये जो भी डेटा है, सो लेट मी जस्ट यूज द सेम डेटा एंड अलोंग विद दिस डेटा ये जो है ना इनके साथ में ये क्लस्टर सेंटर्स को भी प्लॉट करता हूँ। सो लेट मी जस्ट प्लॉट देम आउट। सो plt डॉट स्कैटर। अभी इस स्कैटर में मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को भी डिस्प्ले करता हूँ, ये सारे पॉइंट्स को डिस्प्ले करता हूँ। सो बेसिकली दीज आर एक्स वैल्यूज ऑफ ऑल द पॉइंट्स एंड दीज आर वाई वैल्यूज ऑफ ऑल द पॉइंट्स। नाउ माय क्वेश्चन टू इज दैट व्हाट इज टाइप ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, व्हाट इज टाइप ऑफ दिस ऑब्जेक्ट? यस दैट इज नंपा array, दिस इज नंपा array। अभी मुझे क्या करना है कि इसमें से सिर्फ एक्स वैल्यूज देखो, जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ एक्स वैल्यूज मतलब एक्स एक्सिस पे एनुअल इनकम लिया था, वैसे इस क्लस्टर सेंटर्स के लिए ये आपके सारे एक्स वैल्यूज है। सो सिर्फ इस वैल्यूज को मतलब सिर्फ पहले कॉलम को मुझे सिलेक्ट करना है फ्रॉम दिस नंपा array। कैसे करे, फ्रॉम दिस नंपा array सिर्फ पहले कॉलम को मुझे सिलेक्ट करना है ये सारे वैल्यूज। सो लेट मी जस्ट शो यू दिस। तो ये जो नंपा array इसमें से ये है आपके एक्स के वैल्यूज, मतलब एक्स एक्सिस पे, एंड ये जो है वैल्यूज ये आपके आएंगे वाई एक्सिस पे। तो एज ए एक्स मुझे प्रोवाइड करना है स्कैटर को एंड ये एज ए वाई प्रोवाइड करना है मुझे स्कैटर को। तो ये एक्स मतलब ये जो पहला पहला कॉलम है इन दिस टू डायमेंशनल नंबर है, तो इसको कैसे सिलेक्ट करें? बेसिकली ऑब्वियसली वी हैव टू गो फॉर स्लाइसिंग, लेकिन स्लाइसिंग में क्या आएगा यहाँ पे, कैसे सिलेक्ट करें पहला कॉलम, सिर्फ वो कॉलम मुझे यहाँ पे पास करना है। सो कैसे करेंगे स्लाइसिंग एक्स का व्हाट कोलन कोलन। तो यहाँ पे होता है स्टार्ट, actually it is for rows and it is for columns। तो मुझे बताओ सारे रोज मुझे सिलेक्ट करने हैं, मतलब देखो ये भी है ये भी है ये भी है ये भी है ये भी है, मतलब ऑल रोज। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं रखूंगा। कॉलम्स के केस में मुझे रखना है यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप लाइकवाइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कॉलम है ये सिर्फ पहला कॉलम ही मुझे चेक रखना है। तो देर इज नो रेंज ऑफ कॉलम्स, एक से ज्यादा कॉलम्स यूज करते तो यहाँ पे स्लाइसिंग यूज करते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम यूज करना है
एट इंडेक्स 0, मतलब ये पहला कॉलम, 0 मतलब पहला कॉलम, 1 मतलब दूसरा कॉलम। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो कॉलम लिखने की जरूरत नहीं, अगर आपको ऑल रोज सिलेक्ट करने तो दो कॉलम भी लेने की जरूरत नहीं, एक भी कॉलम दिया तभी भी चलता है, दोनों कॉलम कोलन दिया तभी भी चलता है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या, ऑल रोज एंड जीरो कॉलम। सो ऑल रोज एंड जीरो कॉलम मतलब ये कॉलम। ऑन वाई एक्सिस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यस, अगेन ऑल रोज एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। एंड इनको जो प्लॉट करता हूं मैं, दैट इज बाय कलर। लेट मी जस्ट यूज कलर ब्लैक फॉर देम, ब्लैक। एंड इनका साइज भी मैं डिफाइन करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा साइज लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इट इज 50 वगैरह ऐसा कुछ। तो ये बड़े पॉइंट्स दिखेंगे। एंड लेट मी जस्ट शो यू दैट। नहीं, ये क्या बोला, इज इनवैलिड, कहाँ पे स्लाइसिंग इनवैलिड है, सॉरी एक्स पे नहीं, ये इसके ऊपर, सॉरी ये जो है ना ये नंपायर है, तो लेट मी जस्ट कॉल इट एज क्लस्टर सेंटर्स, लेट मी कॉल इट एज सीसी, ओके। सो इसको मैं सीसी, ये जो नंपायर है ना इसको सीसी में मैं सेव करता हूँ, ठीक है। सो ये यहाँ इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या बोलना चाहिए, क्लस्टर सेंटर्स, यहाँ पे मुझे बोलना चाहिए सीसी, ठीक है। सो बाय मिस्टेक मैंने एक्स ही यूज किया, सो दैट शुड नॉट हैपन। Yes, now you can just see where that cluster centers are been printed out. Where that cluster centers are been printed out. Now, अभी एक थोड़ा सा और 5 मिनट में लेता हूँ। सो ये सिर्फ क्लस्टर सेंटर के हिसाब से आप अभी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके जो पॉइंट्स है ना ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे। सो कैन जस्ट एनालाइज कि ये पॉइंट यहाँ पे गए होंगे, ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे। लेकिन अभी मुझे ये प्रिंट करना है, तो कैसे करें, मतलब ये अलग कलर से, ये अलग कलर से, तो ये प्रिंट मतलब कलरिंग में अगर प्रिंट करता हूं तो ये कलरिंग के हिसाब से हमें प्रॉपरली पता चलेगा कि ये पॉइंट कहाँ पे जा रहा है, बिकॉज अभी हम समझ में नहीं आ रहा है कि ये पॉइंट इस के साथ जाएगा कि इसके साथ जाएगा। सो वो अभी हमें करना है। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक पॉइंट का क्लस्टर ढूंढना पड़ेगा। तो हर एक पॉइंट मतलब अगर ये दो पॉइंट एक क्लस्टर में आ रहा है तो इनका क्लस्टर नंबर सेम होगा। एंड क्लस्टर नंबर रैंडमली होते हैं, ये 0 1 2 3 4 ऐसा हो सकता है, या तो 0 1 2 3 4 ऐसे हो सकता है, वॉट एवर इट में भी। सिर्फ दो पॉइंट्स अगर सेम क्लस्टर में है तो उनका क्लस्टर नंबर सेम होना चाहिए, दैट्स इट, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। किसी को कोई डाउट था क्या अभी? हाँ, ये स्लाइसिंग में देखो सर, ये दिस इज योर, लेट मी जस्ट डिस्प्ले सीसी, ठीक है। ये क्लस्टर सेंटर्स है, राइट। अभी ये जो क्लस्टर सेंटर्स है इसका नाम है सीसी, राइट। तो ये सीसी, अभी देखो यहाँ पे ये जो नंपायर है इसको मुझे कट डाउन करना है इसमें। तो ये नंपायर है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, सो इट इज 5/2 नंपायर है, राइट। 5/2, 5 रोज 2 कॉलम्स। तो जब हमें ये स्लाइसिंग करना है तो हमें रो का स्लाइसिंग अलग से करना पड़ता है, कॉलम का स्लाइसिंग अलग से करना पड़ता है, राइट, बिकॉज इट इज 2 डायमेंशनल। तो रो के स्लाइसिंग में आप देख सकते हैं सारे रोज आपको चाहिए, ये भी रो चाहिए, ये भी रो आ रहा है, 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 मतलब रोज के केस में आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, सिर्फ मैं यहाँ पे कोलन लिखूंगा। सिर्फ कोलन लिखा मतलब बाय डिफॉल्ट स्टार्ट से बाय डिफॉल्ट एंड तक सिर्फ कोलन लिखता हूँ, मतलब बाय डिफॉल्ट स्टार्ट 0, बाय डिफॉल्ट एंड मतलब 0 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 5 आया। सो ये बाय डिफॉल्ट वैल्यूज होते हैं अगर नहीं लिखते तो, ठीक है। सो इसका मतलब ऑल रोज वी आर सिलेक्टिंग, बट इन केस ऑफ कॉलम तो ये कॉलम 0 है, ये कॉलम 1 है। तो कॉलम के केस में मुझे सिर्फ कॉलम 0 सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे डायरेक्टली 0 लिख दिया मैंने। इन केस ऑफ वाई वैल्यूज, ये वाले वैल्यूज, इसके केस में देखो अगेन आई हैव टू सिलेक्ट ऑल रोज, ये देख सकते हैं आप सारे रोज है, ये भी सिलेक्ट करना है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ऑल रोज, कॉमा कॉलम के केस में मुझे सिर्फ कॉलम 1 सिलेक्ट करना है, सो ओनली कॉलम 1 आई हैव सिलेक्टेड लाइक दिस। गॉट इट? या so yeah, so let's give coloring to this points। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक पॉइंट का मुझे क्लस्टर देखना पड़ेगा। सो वो किस क्लस्टर में आ रहा है, सो उसको मैं बोलता हूँ क्लस्टर नंबर। सो क्लस्टर नंबर्स इज इक्वल टू, ये जो मॉडल है इसको मैं बोलूंगा जस्ट प्रेडिक्ट क्लस्टर नंबर्स ऑफ ऑल एक्स वैल्यूज।
सो जो भी x वैल्यू, x मतलब इसमें ये 200 पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स का क्लस्टर नंबर निकालो। तो यहाँ पे क्लस्टर नंबर्स आप देख सकते हैं, लेट मी जस्ट शो यू क्लस्टर नंबर्स एज वेल। तो ये आप देख सकते क्लस्टर नंबर्स। सो ये 3 मतलब पहला पॉइंट थर्ड क्लस्टर में जा रहा है, सेकंड पॉइंट फर्स्ट क्लस्टर में, ये थर्ड क्लस्टर में, ये फर्स्ट पॉइंट में। लाइकवाइज दिस पॉइंट्स कम्स इनटू second cluster, it is into 0 cluster, it is into 4 cluster, it is into 4 cluster, it is into 4 cluster, it is into 0 cluster likewise। अगर अभी देखो ये जो नंबर्स है ना, ये 3 को अगर मैंने 0 बोला तो जहां जहां पे 3 है वहां वहां पे 0 होना चाहिए। मतलब ये नंबर्स कैसे भी हो सकता है, ये 0 क्लस्टर हो सकता है, ये 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, या तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है। सो ये नंबर का कोई लेना देना होता है, सिर्फ इसका मतलब ये होता है कि अगर ये पहले क्लस्टर में आ रहा है तो ये भी पहले क्लस्टर में आएगा, ये भी पहले क्लस्टर में आ रहा है। ये अगर थर्ड क्लस्टर में आ रहा है तो ये भी थर्ड क्लस्टर में, ये भी थर्ड क्लस्टर में, ये भी थर्ड क्लस्टर में। अगर ये क्लस्टर नंबर 2 है तो ये सारे 2 होंगे, अगर ये 0 है तो ये सारे 0 होंगे। सो इसका मतलब जो भी सारे पॉइंट्स है इनका लेबल सेम होना चाहिए, मतलब इनका क्लस्टर नंबर सेम होना चाहिए। ये अगर 0 है तो सारे 0 होंगे, 1 है तो सारे 1 होंगे, 2 है तो सारे 2 होंगे लाइकवाइज। तो उसके हिसाब से मुझे क्लस्टर नंबर्स मिले। नाउ फ्रॉम दिस क्लस्टर नंबर्स आई विल जस्ट ओनली चूज क्लस्टर्स फ्रॉम क्लस्टर नंबर 1, सॉरी क्लस्टर नंबर 0 लेट्स से। तो सिर्फ इन पॉइंट्स को मुझे सिलेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे? सो from x I want to choose only, I want to choose only points whose cluster number is 0। तो cluster number is equal to 0। तो can I say that ये जो cluster, let me just call it as cluster number equal to let me call it as 3। तो ये जो can I say that इसका आउटपुट क्या आएगा? एक बुलियन एरे आएगा, राइट? तो बुलियन एरे में जहां पे क्लस्टर नंबर 3 होगा वहां पे ट्रू होगा, बाकी के सारे फॉल्स। सो लेट मी जस्ट शो यू। आप देख सकते हैं पहला 3 है इसलिए पहले के यहाँ पे ट्रू आया, दूसरा 3 नहीं है तो फॉल्स आया, तीसरा 3 है तो ट्रू आया लाइकवाइज। सो दिस इज व्हाट बुलियन अरे इज, एंड आई एम नाउ पासिंग दिस बुलियन अरे टू योर एक्स डेटा फ्रेम। तो ये क्या करेगा? एक्स में से सिर्फ क्लस्टर नंबर 3 वाले पॉइंट सिलेक्ट करने वाला है, एक्स में से सिर्फ क्लस्टर नंबर 3, क्योंकि एक्स में अगर मैंने बुलियन एरे पास किया तो अगर पहला रो सिलेक्ट किया जाएगा बिकॉज ये ट्रू है, दूसरा नहीं करेगा, तीसरा करेगा बिकॉज इट इज ट्रू। सो सिर्फ ट्रू वाले रोज सिलेक्ट करेगा, ये मतलब ट्रू वाले डेटा पॉइंट सिलेक्ट करेगा। दिस इज हाउ इट इज। सो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज दिस टेक्निक। सो आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, ये सारे पॉइंट्स आपके क्लस्टर 3 के पॉइंट से। लाइकवाइज ये 0 करो 0 के मिलेंगे, 1 करो 1 के मिलेंगे, 2 करो 2 के मिलेंगे। सो लाइकवाइज आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द पॉइंट्स एंड क्लस्टर 3 को मैं अलग से प्रिंट करूंगा, अलग कलर से, 1 को अलग से, 0 को अलग से। सो लेट मी जस्ट राइट डाउन दैट लॉजिक ओवर हियर। तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट यूज plt डॉट स्कैटर। तो ये सारे एक साथ करने पड़ेंगे मुझे। सो स्कैटर पहले मैं सिर्फ क्लस्टर 0 के पॉइंट्स को रेड कलर से प्रिंट करता हूं। तो क्लस्टर 0 के पॉइंट्स कैसे सिलेक्ट करें? एक्स ऑफ क्लस्टर नंबर जिनका 0 है वो पॉइंट्स। तो ये जो पॉइंट सिलेक्ट हुए उनका एक्स एक्सिस पे मैं क्या ले लूंगा? व्हाट इज दैट? आई थिंक इट इज व्हाट, एनुअल इनकम। सो जस्ट लेट मी जस्ट कॉपी दिस एज इट इज। तो उनका एनुअल इनकम कॉलम में सिलेक्ट करूंगा। सो लेट मी जस्ट सिलेक्ट एनुअल इनकम कॉलम। ओके, सो एनुअल इनकम। तो ये क्या हो गया? ये सारे आपके क्लस्टर 0 के पॉइंट्स है। ठीक है, ये क्लस्टर 0 के पॉइंट्स, उसमें से मैंने उनका सिर्फ पहला कॉलम चूज किया। अभी उनका दूसरा कॉलम चूज करता हूं ऑन टू वाई एक्सिस। तो इनका, सॉरी, ये जो क्लस्टर 0 के पॉइंट्स थे, ये सारे क्लस्टर 0 के पॉइंट्स है, उनका सेकेंड कॉलम का नाम क्या है? दैट इज पेंडिंग स्कोर। ठीक है, तो ये सिर्फ क्लस्टर 0 के पॉइंट से उनका एक्स कॉलम, क्लस्टर 0 के पॉइंट से उनका वाई कॉलम, एंड इनको मैं प्रिंट करूंगा यूजिंग कलर लेट मी कॉल इट एज रेड लेट से। तो ये सिर्फ क्लस्टर 0 है। ऐसे मैं चारों क्लस्टर को प्रिंट करता हूँ।
ऐसे में चारों क्लस्टर को प्रिंट करता हूँ। क्लस्टर 1 को कैसे चूज करेंगे, सिर्फ यहाँ पे 1 करो, दैट्स इट। एंड क्लस्टर 1 को मैं प्रिंट करता हूँ यूजिंग ब्लू कलर, लेट्स से। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट क्लस्टर को प्रिंट करते हैं, दैट इज क्लस्टर नंबर 2। क्लस्टर नंबर 2 को प्रिंट करते हैं एंड लेट मी यूज विच कलर, लेट मी यूज येलो कलर फॉर दैट। देन क्लस्टर नंबर 3 को हम प्रिंट करते हैं, क्लस्टर नंबर 3, क्लस्टर नंबर 3, एंड इनको मैं प्रिंट करता हूँ यूजिंग कलर, लेट्स से cyan। क्लस्टर नेक्स्ट क्लस्टर को प्रिंट करते हैं, दैट इज क्लस्टर नंबर 4। 0 से लेकर 4 तक ही होंगे क्लस्टर्स हमारे, एंड इसको मैं प्रिंट करता हूँ यूजिंग अनदर कलर, लेट्स कंसीडर द कलर इज एनीथिंग लाइक ग्रीन, लेट्स से, ठीक है। एंड इनके साथ में इनके क्लस्टर सेंटर्स भी प्रिंट करता हूँ। सो क्लस्टर सेंटर प्रिंट करने के लिए ऑलरेडी हमने लिखा था, सो इसको मैं सिर्फ कॉपी करता हूँ एंड लेट मी जस्ट प्रिंट हियर। इनका सिर्फ साइज बढ़ाता हूँ बिकॉज ये सेंटर्स है तो बड़े दिखने वाले। ये जो क्लस्टर सेंटर्स होते हैं दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर डेटा, ये डेटा का पार्ट नहीं होते, ये कैलकुलेटेड पॉइंट्स होते हैं, ये डेटा का पार्ट बिल्कुल भी नहीं होते, ठीक है। सो ये सबको मैं अभी प्रिंट करता हूँ एंड नाउ यू कैन सी, कैन आई से दैट दिस इज एज एक्सपेक्टेड। ये पॉइंट्स एक क्लस्टर में, ये पॉइंट्स एक क्लस्टर में, ये एक पॉइंट क्लस्टर में, ये क्लस्टर में, ये क्लस्टर में। Now if I get this particular information, now what I will tell that ये जो येलो वाले लोग हैं उनके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रीम लगाओ फॉर मार्केटिंग पर्पस। तो ये येलो वाले लोग मतलब कौन से लोग, ये मतलब एक्स में से ऐसे लोग जिनका क्लस्टर नंबर, देखो येलो के लिए कौन सा क्लस्टर नंबर था, इनके लिए क्लस्टर नंबर 2 है। तो ये मैं क्या करूंगा, जिनका क्लस्टर नंबर 2 था, मतलब सॉरी 2, ये जो लोग हैं, ये जो डेटा है इनके साथ उनका कांटेक्ट नंबर भी होगा। तो ये जो डेटा है ना, मैं वो मार्केटिंग टीम को दे दूंगा एंड उनको बोलूंगा कि भाई ये जो लोग हैं ना सोच समझ के खर्चा करते हैं, तो उनको ठीक ठाक से कन्विंस करो। सो दिस इज व्हाट दैट डेटा इज। सो यस, दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड। So these clusters are as expected that as we are thinking about. That is what beauty of K means. ठीक है। सो दिस इज फॉर टुडे एंड एग्जैक्टली 5 क्लस्टर्स ही क्यों लेने हैं, 4 क्लस्टर्स ही क्यों लेने हैं, ये कैसे डिसाइड करना है मैथमेटिक्स, बिकॉज एज ए ह्यूमन बीइंग हमने डिसाइड किया कि 5 लेंगे क्लस्टर्स, लेकिन हाउ टू फाइंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्लस्टर्स मैथमेटिकली, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। Okay, so if you have any doubt in this particular thing, you can just ask me now.